إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد
شهيد لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد وقال قرينه هذا ما لدي عتيد ألقيا في جهنم كل كفار عنيد مناع للخير معتد مريب الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد قال قرينه ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أشد منهم بطشا فنقبوا في البلاد هل من محيص إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في 6 أيام وما مسنا من لغوب فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب ومن الليل فسبحه وأدبار السجود واستمع يوم ينادي المناد من مكان قريب يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج إنا نحن نحيي ونميت وإلينا المصير يوم تشقق الأرض عنهم سراعا ذلك حشر علينا يسير نحن أعلم بما يقولون وما أنت عليهم بجبار فذكر بالقرآن من يخاف وعيد قال الله سبحانه وتعالى في مقام آخر ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين نهایت قابل قدر عزیز نوجوان بھائیوں زندہ دل سفید ریش بزرگوں حیا کی چادر میں لپٹی ہوئی معززات ماؤں اور بہنوں عید الاضحیٰ قریب آ رہی ہے ہم دعاگو ہیں کہ یہ سعادت کا دن اللہ تبارک و تعالی تمام اہل اسلام کے نصیب میں فرمائے عید الاضحیٰ پر ہم جو قربانیاں کرتے ہیں یہ کس کی سنت ہے اللہ کے پیارے پیغمبر سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے قبل اس کے کہ ہم ان کی سنت پر عمل کریں یہ جان لینے کی ضرورت ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کون تھے
ये जान लेने के बाद हम सब का ये फरीज़ा है कि हम इब्राहीमी बन जाएं। इब्राहीम अलैहिस्सलाम के फ़ज़ाइल में बड़ी बातें की जा सकती हैं, लेकिन मैं समझता हूँ कि शायद एक बात ही काफ़ी है कि तमाम अम्बिया और रसूल से सबसे बढ़कर मकाम सय्यद दो आलम जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का है। इसके बावजूद भी नबी आखिरुज़्ज़मा से अल्लाह तबारक व तआला ने क्या फरमाया, सुम्मा औहैना इलैका अन इत्तबि' मिल्लत इब्राहीम हनीफा वमा कान मिनल मुशरिकीन। हमने आपकी तरफ वही की है, इब्राहीम अलैहिस्सलाम के दीन की पैरवी कीजिए। गोया सबसे ज़्यादा मकाम रखने वाले आखिरी पैगंबर को हुक्म मिला कि वो इब्राहीम की सीरत पर अमल करें, सादा लफ्ज़ों में इब्राहीमी बन जाएं। हम में से भी हर आदमी इब्राहीमी बने, हर शख्स को इब्राहीमी बनना चाहिए। और आज के खुतबा जुमा में इसी के मुताल्लिक़ चंद बातें, चंद गुजारिशात हम पेश करेंगे ताकि क़ुरबानी से पहले पहले हम इब्राहीमी बनकर फिर इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सीरत और सुन्नत पर अमल करें। सबसे पहली बात तो ये है, इब्राहीम अलैहिस्सलाम के दीन की पैरवी का हुक्म अल्लाह तबारक व तआला ने दिया है। औहैना इलैक अन इत्तबि' मिल्लत इब्राहीम हनीफा। ये हुक्म बज़ाहिर प्यारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए है, लेकिन उमूमी तौर पर उम्मत का हर फ़र्द इस हुक्म में शामिल है। हर शख्स पर लाजिम है, फ़र्ज़ है कि वो इब्राहीमी बन जाए। सूरह हज में अल्लाह ताला ने क्या फरमाया, वजाहिदू फिल्लाहि हक़्क़ जिहादी हुवा जतबाकुम वमा जअल अलैकुम फिद्दीन मिन हरज मिल्लत अबीकुम इब्राहीम हुवा सम्माकुमुल मुस्लिमीन मिन क़ब्लु व फ़ी हाज़ा। अल्लाह के रास्ते में पूरी तरह कोशिश कीजिए, जिस तरह कोशिश करने का हक़ है। अल्लाह तबारक व तआला ने तुम्हें मुंतखब फरमा लिया है और दीन के मामले में तुम पर कोई तंगी नहीं रखी। और ये दीन मिल्लत अबीकुम इब्राहीम, तुम्हारे बाप इब्राहीम की मिल्लत, इब्राहीम का लाया हुआ ये दीन है। और अल्लाह तबारक व तआला ने पहले भी और अब भी तुम्हारा नाम मुसलमान रखा है। इसी तरह तीसरे मकाम सूरतुल अनाम में क्या फरमाया, कुल इन्ननी हदानी रब्बी इला सिरातिन मुस्तकीम। कह दीजिए यकीनी तौर पर मेरे रब ने मुझे सीधा रास्ता दिखाया है। दीनन क़ियामा, ऐसा दीन अता किया है जो बिल्कुल दुरुस्त है और बिल्कुल सीधा है। मिल्लत इब्राहीम हनीफा, इब्राहीम जो बिल्कुल यकसू थे, ये उनका दीन है। वमा कान मिनल मुशरिकीन, और इब्राहीम अलैहिस्सलाम मुशरिकों में से नहीं थे, एक अल्लाह की परस्तिश करने वाले थे। और याद रखिए, ये बात तो हमने समझ ली कि हर उम्मत के फ़र्द पर लाजिम और फ़र्ज़ है कि वो इब्राहीमी बने। अब दूसरी बात को भी समझ लीजिए कि जो इब्राहीम अलैहिस्सलाम की मिल्लत से, उनके लाए हुए दीन से, उनकी दावत और तबलीग से रूगर्दानी इख्तियार करेगा, ऐसा इंसान यकीनी तौर पर पूरी दुनिया का अहमक तरीन और बेवकूफ़ आदमी तसव्वुर किया जाएगा। ये कुरान करीम में अल्लाह ताला ने फरमाया, वमन यरग़बु अन मिल्लति इब्राहीम इल्ला मन सफ़िह नफ़्सह। और कौन है
जो इब्राहीम की मिल्लत से मुंह मोड़े सिवाय उस शख्स के जो ख़ुद को हमाकत में डाल दे, बेवकूफ़ी में डाल दे। वलक़द इस्तफ़ैनाहु फ़िद्दुनिया, और यकीनी तौर पर हमने इब्राहीम अलैहिस्सलाम को दुनिया में चुन लिया है एक ख़ास मकाम देकर। वइन्नहु फ़िल आख़िरति लमिनस्सालिहीन, और बिलाशुबा आखिरत में भी वो अल्लाह के नेक बंदों में शामिल होगा। हमने अभी तक दो बातें समझ ली हैं। पहली बात ये कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम की मिल्लत की पैरवी करना हर फ़र्द पर लाजिम है, और दूसरी बात क्या सीखी कि जो शख्स भी इब्राहीम अलैहिस्सलाम के लाए हुए दीन से मुंह मोड़ेगा वो ज़माने का बेवकूफ़ तरीन आदमी है। ये दो बातें जान लेने के बाद हमारी तीसरी बात यह है कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम की मिल्लत पर अमल करने के जो तकाज़े हैं वो क्या है। उसमें सबसे पहला तकाज़ा ये है कि नफ़ा का मालिक और नुकसान का मालिक एक अल्लाह है, उसके अलावा और कोई ज़ात नहीं। अगर आपको फ़ायदे ही फ़ायदे पहुँच रहे हैं दुनिया में, दुनिया की ज़िंदगी में, आप पुरतायुश ज़िंदगी बसर कर रहे हैं, ये अल्लाह ताला की तरफ से है। और अगर आप मुश्किलात में घिरे हुए हैं, आप पर मुश्किलात हैं, मुश्किलात का सामना आपको करना पड़ रहा है, नुकसान में, ख़सारे में, घाटे के अंदर अगर आप हैं, ये भी अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से है, किसी ने आपका कुछ नहीं बिगाड़ा। ये अक़ीदा राज़ कर लीजिए। हुक्मरानों के आने के साथ हालात नहीं बदलते, ये हालात हमारी दीन के साथ दुश्मनी और दीन पर ना अमल करने का नतीजा है। ये हमारे हाथों की कमाई है। सैलाब का आना, महंगाई का आना और दीगर अज़ाबों का मुसल्लत होना, सबसे बड़ा अज़ाब मैं जो समझता हूँ जो हम पर आया वो क्या है, हमारे प्यारे पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौहीन की गई है। ये सबसे बड़ा हम पर अज़ाब है। महंगाई कुछ नहीं है, सैलाब कुछ नहीं है, लोड शेडिंग कुछ भी नहीं है। सबसे बढ़कर उम्मत इस्लामिया के लिए तकलीफ़ दे बात क्या है कि मुसलमान ज़िंदा हैं और उनके नबी की तौहीन हो रही है। ज़िंदा रहने का हक़ नहीं है ऐसे लोगों को। मिल्लत इब्राहीमी से ये दूरी के तकाज़े हैं। किस तरह? हाँ, काफिरों को पता चल चुका है, अब हमारी लाई हुई तहज़ीब का ये मुसलमान हिस्सा बन चुके हैं। अब इनमें जिहाद के लिए खड़े होने वाले लोग नहीं हैं, अपने नबी का दिफा करने वाले लोग नहीं हैं, अल्लाह और उसके रसूल के साथ मोहब्बत करने वाले लोग नहीं रहे। अब चाहो जो मर्ज़ी करते रहो, इनके रब के ख़िलाफ़ बातें करो, इनके नबी के खाके छापो, इन्हें कोई असर नहीं पड़ेगा। वो जानते हैं, हमारी बेबसी को जानते हैं, वो ये जानकर ही वो सारे काम करते हैं। ये सारी की सारी चीज़ें मिल्लत इब्राहीमी से एराज़ का नतीजा है। नफ़ा नुकसान का मालिक सिर्फ़ एक अल्लाह है। ये इब्राहीम अलैहिस्सलाम का सिखाया हुआ सबक है। अपनी कौम से क्या कहा था? सूरत अश-शुअरा देखिए, इज़ क़ाल लिअबीहि व क़ौमिही मा तअबुदून। उसने अपने बाप और अपनी कौम से पूछा, किसकी परस्तिश करते हो? क़ालू नअबुदु अस्नामन फ़नज़ल्लु लहा आकिफ़ीन। उन्होंने जवाब दिया कि हम बुतों की पूजा करते हैं और उनकी सेवा में लगे रहते हैं। क़ाल हल यस्मऊनकुम इज़ तदऊन औ यंफ़ऊनकुम औ यज़ुर्रून। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने पूछा, सुनते हो? जिन्हें तुम पुकारते हो ये तुम्हें नफ़ा और नुकसान पहुँचा सकते हैं? नहीं पहुँचा सकते। क़ालू बल वजदना आबाअना कज़ालिका यफ़अलून। कौम ने कहा, ये बुत हमें ना नफ़ा दे सकते हैं ना नुकसान दे सकते हैं, लेकिन हमने अपने आबा को देखा था वो इनकी परस्तिश करते थे। क़ाल अफ़रअय्तुम मा कुन्तुम तअबुदून अंतुम व आबाउकुमुल अक़दमून फ़इन्नहुम अदुव्वुन ली इल्ला रब्बल आलमीन।
मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा फिर जिनकी तुम परस्तिश कर रहे हो, तुम और तुम्हारे बाप, ये पहले बुतों की ये कुछ भी नहीं कर सकते, ये सारे के सारे मेरे दुश्मन हैं। तो यहाँ काबिल ज़िक्र बात क्या है कि उन्होंने ख़ुद एतराफ़ किया कि हमारे बुत ये ना हमें नफ़ा दे सकते हैं ना नुकसान पहुँचा सकते हैं। इसी तरह दूसरा सबक क्या और दूसरा तकाज़ा क्या है? हाजत रवा और मुश्किल कुशा सिर्फ़ एक अल्लाह की ज़ात है। यह भी इब्राहीम अलैहिस्सलाम का सबक है दिया हुआ। इब्राहीम को जब ज़रूरत पड़ी बेटे की, क्या कहा? क्या किसी दरबारी के पास गए, किसी मुशरिक पलीद के पास गए? नहीं, उन्हें पता था हाजत रवा मुश्किल कुशा सिर्फ़ एक इलाह है। क्या कहा? रब्बी हबली मिनस्सालिहीन, या अल्लाह अपनी तरफ से मुझे नेक साले बेटा दे दे। किसको पुकारा? अपने रब को पुकारा। वो जानते थे इस वक़्त मैं बिल्कुल बूढ़ा हो चुका हूँ, सारे असबाब ख़त्म हो चुके हैं, सब कुछ ख़त्म है, बुढ़ापे के अंदर कोई मेरा सहारा नहीं है। लेकिन उन्हें पता था एक अल्लाह से मांगूंगा वो देगा। अल्लाह तबारक व तआला से बेटा मांग लिया और अल्लाह तबारक व तआला ने वो बेटा अता किया। और इसी तरह इब्राहीम अलैहिस्सलाम ये समझते थे कि रिज़्क़ देने वाला, मुश्किलात को ख़त्म करने वाला, रोज़ी देने वाला भी अल्लाह तबारक व तआला है। डायरेक्ट उन्होंने बग़ैर किसी वसीले और वास्ते के अल्लाह तबारक व तआला से रिज़्क़ मांगा। वइज़ क़ाल इब्राहीम रब्बि जअल हाज़ा बलदन आमिना वरज़ुक़ अहलहू मिनस्समराति मन आमन मिनहुम बिल्लाहि वल यौमिल आखिर। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा था या अल्लाह इस शहर को अमन वाला शहर बना दे, मक्का को, और इसके बाशिंदों को रिज़्क़ अता फरमा। तो गोया इब्राहीम ने बेटा मांगा, किससे मांगा? अल्लाह से मांगा। और अपने शहर वालों के लिए रिज़्क़ मांगा, किससे मांगा? अल्लाह से मांगा। वो जानते थे मुश्किल कुशा, हाजत रवा सिर्फ़ और सिर्फ एक अल्लाह की ज़ात है। ऐसे ख़तीब को, ऐसे इमाम को इमामत और खिताबत छोड़ देनी चाहिए जिसके मुक़्तदी को आज तक ये नहीं पता चला कि मुश्किल कुशा अली है या अल्लाह है। हज़ारों अली उल मुर्तज़ा पैदा हो जाएं, सारी दुनिया मिलकर अली उल मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु अन्हु बन जाए, मुश्किल कुशा नहीं बन सकते। ये गलत सबक पढ़ाया लोगों ने आपको कि मुश्किल कुशा अली है, हाजत रवा अली है, ये गलत रास्ता दिया। शायद आज अगर अली उल मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु अन्हु ज़िंदा हों, ऐसे सबको सूली के फांदे पर चढ़ाकर सबको कत्ल कर दें कि तुम्हें किसने कहा कि मैं रब हूँ। हाजत रवास और मुश्किल कुशा सिर्फ़ और सिर्फ एक अल्लाह की ज़ात है। ये इब्राहीम अलैहिस्सलाम की मिल्लत है और इब्राहीम अलैहिस्सलाम का लाया हुआ दीन है। और अल्लाह ताला ने हुक्म दिया है कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम के दीन पर अमल करो। और तीसरा तकाज़ा क्या है? शिरक से, एक है कि शिरक से दूर रहें, एक है कि शिरक से बहुत ही ज़्यादा दूर रहें। शिरक से बहुत ज़्यादा दूर रहना ये इब्राहीम अलैहिस्सलाम का तरीका है। और कुरान करीम पे अल्लाह तबारक व तआला ने कई मकामात पर यह फरमाया है वमा कान मिनल मुशरिकीन। इब्राहीम अलैहिस्सलाम मुशरिकों में से नहीं थे। आप जानते हैं इब्राहीम अलैहिस्सलाम हर दिल अजीज़ शख्सियत है। वो इतने अल्लाह वाले थे कि आज तक यहूदी कहते हैं कि इब्राहीम हमारे हैं, आज तक ईसाई कहते हैं कि इब्राहीम हमारे हैं। और बेड़ा गर्क हो ऐसे मुशरिकों का जो समझते हैं कि इब्राहीम हमारे हैं। हाँ, अल्लाह ताला ने फ़ैसला फरमा दिया, मा कान इब्राहीम यहूदिय्यन वला नसरानिय्यन वलाकिन कान हनीफन मुस्लिमा वमा कान मिनल मुशरिकीन। इब्राहीम ना यहूदी थे ना ईसाई थे, वो तो सिर्फ अलग थलग होकर एक अल्लाह को पूजा करने वाले थे और वो मुशरिकों में से भी नहीं थे। तो ये अल्लाह तबारक व तआला ने फ़ैसला फरमा दिया। बेटा जो है, बेटा इस पर भी लाजिम है इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सीरत को पढ़े, परखे और देखे कि बेटा कैसा होना चाहिए।
बेटे के अंदर क्या सिफ़ात होने चाहिए? इब्राहीम अलैहिस्सलाम बहैसियत बेटा अपने बाप के साथ उनका क्या ताल्लुक़ था, वो भी कुरान करीम ने बयान किया है। इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपने बाप के इताअत गुज़ार थे। अगर आप बेटे हैं, इब्राहीम जैसे इताअत गुज़ार बेटे बने। उसने क्या कहा था? क़ाल अराग़िबुन अन्त अन आलिहती या इब्राहीम लइन लम तंतहि लअरजुमन्नक वहजुरनी मलिया क़ाल सलामुन अलैक सअस्तग़फ़िरु लक रब्बी इन्नहु कान बी हफ़िया। बाप ने कहा था इब्राहीम को, बेटा अगर तू अपने इस तौहीद की दावत से बाज नहीं आएगा, सूली के फंदे पर चढ़ाऊंगा और मेरे गल से निकल जाओ। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने बाप की इताअत की और घर को खैराबाद कह दिया। फर्मा बरदार बेटे थे अपने बाप के। और दूसरे नंबर पर वालिदैन के साथ हुस्न सलूक भी, ये जनाब इब्राहीम अलैहिस्सलाम की फ़ितरत में चीज़ शामिल थी। आप जहाँ भी कुरान में देखें वहाँ अल्फाज क्या है? या अबत, या अबत, या अबत। एक होता है या अबी, अब्बू जान। या अबत का मतलब होता है ए मेरे प्यारे अब्बा जान। मोहब्बत भरे अल्फाज अपने वालिदैन के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, और वालिदैन मुशरिक हैं, वालिदैन काफिर हैं। इसके बावजूद भी अपने वालिदैन के साथ हुस्न तकल्लुम का इजहार फरमाया, बात की, बड़ी अच्छी बात की। वज़्कुर फ़िल किताबि इब्राहीम इन्नहु कान सिद्दीक़न नबिय्या इज़ क़ाल लिअबीहि या अबति लिम तअबुदु मा ला यस्मअ व ला युबसिर व ला युग़नी अन्का शैआ या अबति इन्नी क़द जाअनी मिनल इल्म मा लम यअतिक फत्तबिअनी अहदिक सिरातन सविय्या या अबति ला तअबुदिश शैतान इन्नश शैतान कान लिर्रहमानि असिय्या या अबति इन्नी अखाफु अन यमस्सक अज़ाबुम मिनर रहमान फतकून लिश्शैतानि वलिय्या क़ाल सलामुन अलैक क़ाल अराग़िबुन अन्त अन आलिहती या इब्राहीम लइन लम तंतहि लअरजुमन्नक वहजुरनी मलिया क़ाल सलामुन अलैक सअस्तग़फ़िरु लक रब्बी इन्नहु कान बी हफ़िया। ये आयात आपने समाअत फरमाई हैं। इनमें जहाँ भी इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने वालिद को पुकारा, क्या कहा? या अबत, ए प्यारे अब्बा जान। तो गोया अगर आप बेटे हैं किसी के, आप पर लाजिम है इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सीरत को अपनाएं और अपने वालिदैन के लिए अच्छी गुफ्तगू किया करें। इसी तरह कितने ही बेटे ऐसे हैं कि जो अपने वालिद के ख़िलाफ़, अपनी वालिदा के ख़िलाफ़ अक्सर बोलते रहते हैं। उनकी आदत की वजह से, उनसे मिलने वाली सलवातों की सूरत में अपने वालिदैन को घटिया तसव्वुर करते हैं। नहीं, बल्कि अपने वालिदैन को अपनी दुआ में याद रखा करें। इब्राहीम अलैहिस्सलाम का वालिद काफिर है, मुशरिक है, इसके बावजूद भी उसे अपनी दुआ में याद रखते हैं। और क्या कहा? अल्लाह तबारक व तआला से दुआ मांगी, वग़फ़िर लिअबी इन्नहु कान मिनज़्ज़ाल्लीन। या अल्लाह मेरे बाप को बख्श दे, ये जुल्म करने वालों से है। अल्लाह ताला से अपने बाप के लिए मग़फ़रत तलब कर रहे हैं। लेकिन जब पता चल गया था कि बाप मुशरिक है, काफिर है, मुशरिक आदमी के लिए दुआ करना जायज़ नहीं है, जब ये मसला समझ आ गया इब्राहीम अलैहिस्सलाम को, फिर अपने वालिद के लिए दुआ छोड़ दी थी उन्होंने। क्यों? वो अल्लाह का दुश्मन था। अल्लाह का दुश्मन खा वालिद हो, बेटा हो।
उसके साथ इंसान का कोई ताल्लुक़ नहीं होना चाहिए। और पांचवा सबक क्या है? अगर आप एक बाप हैं, इब्राहीम अलैहिस्सलाम को बहैसियत बाप देखें कि उन्होंने अपनी औलाद के साथ किस तरह अच्छा बर्ताव किया है। सबसे पहले अपनी औलाद को ठहराने के लिए उस सोसाइटी का इंतखाब कीजिए कि जिसके करीब अल्लाह का घर मौजूद हो। ऐसी जगह मकान न खरीदिए जहां तौहीद परस्तों का मरकज़ ही नहीं, जहां अल्लाह वालों के लिए कोई ठिकाना ही नहीं, अल्लाह तबारक व तआला का कोई घर ही नहीं। ऐसी जगह पर अपनी औलाद को न ठहराइए। इब्राहीम अलैहिस्सलाम को बहैसियत बाप देखें। रब्बना इन्नी अस्कन्तु मिन ज़ुर्रिय्यती बिवादिन गैरि ज़ी ज़र्अ इंद बैतिकल मुहर्रम रब्बना लियुक़ीमुस्सलाह। या अल्लाह, मैंने ऐसी सोसाइटी का इंतखाब किया है जो खेती वाली नहीं है, ज़रखेज़ इलाका नहीं है ये, लेकिन इतनी बात है कि तेरे बैतुल्लाह मस्जिद हराम के करीब ये घर है। मैंने ऐसा क्यों किया? रब्बाना लियुक़ीमुस्सलाह, ताकि ये नमाज पढ़ें। आप अगर बहैसियत बाप आदम इब्राहीम अलैहिस्सलाम को देखें, आपकी औलाद इंशाअल्लाह नमाजी बने। और अगर ये नमाजी न बनी, आपने दुनिया की सारी नेमतें अपनी औलाद को दे दी। कल क़यामत के दिन अल्लाह के पास खड़े होकर क्या जवाब देंगे जब अल्लाह ताला ने पूछ लिया इनको दीन सिखाया था कि नहीं, नमाजी बनाया था कि नहीं। उस वक़्त बेटे को आला से आला पोस्ट पर लगवाना कामयाब नहीं आएगा, बेहतरीन कारोबार दिलवा देना बच्चे को ये काम नहीं आएगा। उस वक़्त काम आएगा अपनी औलाद को दीन के ऊपर आपने गामजन किया था कि नहीं, क्योंकि आप घर में मसूल हैं। कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसऊलुन अन रइयती। हर कोई अपनी रियाया के बारे में अल्लाह के यहाँ जवाब दे। आप बाप हैं, आपसे सवाल होगा अपनी औलाद के बारे में। आप एक खामद हैं, बीवी के मुताल्लिक आपसे सवाल होगा। आप एक इदारे के मुंतजिम और मुदीर हैं, मातहत लोगों के हवाले से आपसे पूछगिछ होनी है। क्या आपको नहीं पता कि जितने मातहत आपके लोग हैं इनका हिसाब अल्लाह तबारक व तआला को आपको देना पड़ेगा। इब्राहीम अलैहिस्सलाम का उसवा देखिए। और इसी तरह इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपनी औलाद को भी इस बात की तलकीन की है और उनके लिए डायरेक्ट बराह रास्त उन्होंने अल्लाह तबारक व तआला से रिज़्क मांगा है कि या अल्लाह इस मक्का को रिज़्क के साथ फरावानी कर दे रिज़्क की। मक्का जाने वाले इस बात को समझते हैं, जो अभी तक नहीं जा सके अल्लाह ताला उनके लिए अपनी रहमत के दरवाज़े खोल दे। वहाँ जाकर देखें, नमाज फ़जर पढ़ के अभी आप मस्जिद हराम से बाहर निकलेंगे, वो एरिया कोई बागात का एरिया नहीं है, वहाँ फसलें नहीं हैं, लेकिन नमाज फ़जर की अदायगी के बाद आप बाहर निकलें, वहाँ आपको हर किस्म का फल मिलेगा। वो फल मौसमी हो या मौसम वाला फल ना हो, आपको वहाँ नज़र आएगा। ये इब्राहीम अलैहिस्सलाम की दुआ का नतीजा है। और किससे मांगा था उन्होंने? अल्लाह से मांगा था। एक बड़े ज़बरदस्त नुक्ते की तरफ आपकी रहनुमाई करता हूँ। कुरान में अल्लाह ताला ने सूरतुल बकरा में क्या फरमाया? वइज़ा सअलका इबादी अन्नी फ़इन्नी क़रीब। अगर ये बंदे तुझसे मेरे मुताल्लिक सवाल करें, फ़इन्नी क़रीब, तो मैं करीब हूँ। यहाँ इबारत असल क्या बनती है? अगर कोई अरबी जानने वाला है वो इसको कैसे पढ़ेगा? वइज़ा सअलका इबादी अन्नी फ़हुवा क़रीब, क्योंकि ये सवाल किससे हो रहा है? नबी अलैहिस्सलाम से। तो अल्लाह के नबी बताएं कि वो करीब है। असल इबारत ऐसे बनती है, लेकिन अल्लाह ताला ने फ़हुवा का लफ्ज़ मिटा दिया और क्या कहा? फ़इन्नी क़रीब। ए नबी, जब ये लोग तेरे पास मेरे मुताल्लिक सवाल करने हैं तो तू पीछे हट जा, मैं इनके करीब हूँ। अल्लाह तबारक व तआला ने तो अपने नबी का वास्ता भी बर्दाश्त नहीं किया। चे जाए
कि 10 20 सैकड़ों वास्ते देकर अल्लाह ताला को पुकारा जाए। अल्लाह ताला ने तो अपने और बंदे के दरमियान जो एक नबी का वास्ता था उसको भी ख़त्म कर दिया। फ़इन्नी करीब का लफ्ज़ बोला कि मैं करीब हूँ, ये नहीं कहा कि इन्हें कह देना कि तुम्हारा रब करीब है। इस तरह तो दरमियान में वास्ता आ गया नबी का। नबी के वास्ते को भी अल्लाह ने ख़त्म करके डायरेक्ट कहा मैं तुम्हारे करीब हूँ, करो बात, मांगो मुझसे क्या लेना है। ये इब्राहीम अलैहिस्सलाम का उसवा है। रिस्क मांगा औलाद के लिए, अल्लाह से मांगा, और फिर अल्लाह ने कैसा रिस्क दिया मैंने जिक्र किया। आज भी आप अगर मक्का जाएं, हरम मक्की में नमाज़ पढ़ने, फजर के बाद आप बाहर निकलें, हर किस्म का फल आपको वहाँ पे मिलेगा। ये इब्राहीम की दुआ का नतीजा है जो बराह रास्त उन्होंने अल्लाह से मांगी। छोड़ दीजिए सारे दरबारों को, सारे मिज़ारों को और इन सारे मलंगों और पीरों और फ़कीरों को, ये कुछ भी नहीं है। अगर ये बहुत ज़्यादा नेक साले भी हों फिर भी कुछ नहीं है। नेक सालिहियत का हमसे क्या ताल्लुक़, हमने तो अल्लाह से मांगना है, चीज़ अल्लाह से चाहिए। ये इब्राहीम अलैहिस्सलाम की मिल्लत का तकाज़ा है। और इसी तरह इब्राहीम अलैहिस्सलाम की मिल्लत के तकाज़ों में से एक तकाज़ा दावत भी है। कौम को दावत देने के लिए निकलें, सारा काम दावत का मौलवियों पर ना छोड़ें, अल्लाह के लिए। ये काम हर एक का है, दीन की तरफ बुलाने वाला फरीज़ा हर फर्द पर लाजिम है। और इब्राहीम अलैहिस्सलाम निकले थे कौम को दावत देने के लिए। सारी कौम एक तरफ है और ये अल्लाह वाला एक तरफ है। सारी कौम एक तरफ है, बुतों के पीछे लगे हुए हैं, बाप भी उधर, घर वाले सारे उधर, लेकिन ये अकेला अल्लाह का शेर है जो अल्लाह की तरफ लोगों को पुकार रहा है। कितना इखलास होगा इब्राहीम अलैहिस्सलाम की दावत में कि आज भी इतने मालूम नहीं हज़ारों साल गुजरने के बाद आप इब्राहीम अलैहिस्सलाम का आज भी बैठे तज़किरा सुन लें। आगे बढ़िए, इब्राहीम अलैहिस्सलाम की मिल्लत पर अगर आपने आना है, 10 नहीं 20 नहीं, सैकड़ों मुश्किलात का सामना आपको करना पड़ेगा। बहुत मुश्किलात हैं तौहीद के रास्ते में। दरख्त से आप बेर भी तोड़ना चाहें और दरमियान में कांटे ना आए, मिठास से भरपूर लबरेज शहद आप हासिल करना चाहें और वैसे ही वहाँ तक पहुँच जाए, मुमकिन नहीं है। बड़े बड़े मकासद तक पहुँचने के लिए तकालीफ को बर्दाश्त करना पड़ता है, तकालीफ को बर्दाश्त करना पड़ता है, और ये जनाब इब्राहीम अलैहिस्सलाम को बर्दाश्त करना पड़ी है। कभी कौम की तरफ से परेशानियाँ, कभी मुल्क छोड़ने पर परेशानियाँ, कभी सफ़र हिजरत में परेशानियाँ, बादशाह की तरफ से परेशानियाँ। अल्लाह तबारक व तआला ने अगर बेटा नहीं दिया, बुढ़ापा आ चुका है, ये परेशानी, और अगर बुढ़ापे में आकर बेटा दे दिया, उसे तन तनहा अकेला छोड़ने के हवाले से परेशानियाँ। बीवी और बेटे को ऐसी जगह पर छोड़ा जहाँ कोई भी नहीं है, कोई और इंसान नहीं है, एक अल्लाह के सहारे पर छोड़कर ये इब्राहीम अलैहिस्सलाम वहाँ से चल दिए। इतनी बड़ी बड़ी परेशानियाँ इब्राहीम अलैहिस्सलाम को बर्दाश्त करनी पड़ी। भाई अल्लाह बेटा नहीं देता, लोग कहते हैं फलां पीर के पास जाओ, एक दम करवाओ बेटा हो जाएगा। खुद जो इतनी तकलीफ़ के अंदर गुजर रहे हो, हाँ तकलीफ़ बर्दाश्त कर लीजिए, तकलीफ़ बर्दाश्त कर लीजिए, लेकिन शिरक के रास्ते को इख्तियार ना कीजिए। मत बांधिए अपने हाथ पे धागे और जिस्म के मुख्तलिफ आज़ा पर, और इसी तरह मुंदरियों के अंदर लाए हुए ये नग और दीगर इस तरह की चीज़ें, फ़लाँ दरबार से लाया, फ़लाँ मज़ार से लाया, कुछ भी नहीं देने वाले, ये छोड़ दीजिए। गले के अंदर चेन्स डालना ये गलत है, हराम है, नाजायज़ है। एक एक उंगली में 5-5 अंगूठियाँ पहनना, ये किस नबी का तरीका है? एक पीर साहब से मुलाकात हुई, अजीब हुलिया बनाया है, हाथ के अंदर बहुत ज़्यादा मुंदरियाँ हैं, गले के अंदर बहुत ज़्यादा लफ्ज़ सख्त ना हो जाए पटे पड़े हुए हैं, लिटे हैं, ख़वातीन की तरह पीछे मेंढियाँ की हुई हैं। मैंने पूछा ये क्या हुलिया है, ये हाल किसने बना दिया आपका?
कहने लगा फलां मुर्शद पकड़ा था, उसने ये मेरा हाल बना दिया। अल्लाह के बंदे, तुझे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा पसंद नहीं आया? सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन का लिबास पसंद नहीं आया? ये मुर्शिद कौन होता है जो नबी को भी करास कर गया? सच कहा था, इमामों का रुतबा नबी से बढ़ाएं। इमामों का, वलियों का, पीरों का, मुर्शिदों का रुतबा नबी से बढ़ा दिया लोगों ने। और याद रखिए, वहां जाकर जो हौज़े कौसर पीने ना, वो किसी मुर्शिद के हाथ का नहीं होना, वो किसी इमाम के हाथ का नहीं होना, वो किसी पीर फली मलंग के हाथ का वो हौज़ नहीं होगा। वो प्यारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक हाथों से पिलाया जाएगा। हाँ, याद रखें, उम्मत मुहम्मदिया के फ़र्दों को फरिश्ते हटा देंगे, दूर कर देंगे कुछ को। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाएंगे, इन्हें क्यों पीछे हटाते हो, इन्हें भी पीने दो, मेरी उम्मत में शामिल है। वो कहेंगे आपको नहीं पता। आज का मौलवी कहता है नबी को सब कुछ पता है, और फरिश्ते उस वक़्त क्या कहेंगे, नबी आपको नहीं पता। इन लोगों ने आपके दीन के अंदर नए नए रास्ते ईजाद कर लिए थे। नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब इल्म होगा, आप क्या फरमाएंगे, सुहकन सुहकन लिमन गय्यर बादी, दफ़ा हो जाओ, परे हो जाओ, मेरे दीन के अंदर तुम लोगों ने नए नए रास्ते ईजाद कर लिए थे, आज उन नए रास्ते ईजाद करने वालों के पास जाकर हो देखो सिर पी लो। मेरी सूरत में क्या नक्स आया नज़र, क्या कहेगा जवाबन बता तू वहाँ, आज के नौजवान सुन ले मेरी फ़ग़ां। अगर कल क़यामत के दिन अल्लाह तबारक व तआला के यहाँ उधर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौजूद हुए, आज बहुत ज़्यादा रगड़ा लगाकर तू दाढ़ी को मूंढता है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वहाँ पर पूछ लिया कि मेरी सूरत में तुम्हें क्या नक्स आया था नज़र, उस वक़्त क्या जवाब होगा? लोगों को खुश करने के लिए आज सब कुछ कर लिया, लेकिन वहाँ पर क्या जवाब देगा? इसलिए अल्लाह का वास्ता है, इब्राहीम अलैहिस्सलाम की मिल्लत को पढ़िए। ये बड़ा कड़वा मजमून है, मुझे इल्म है कि ये बातें बर्दाश्त से बाहर हैं बाज़ बातें, लेकिन क्या करें, हमारी ये ज़िम्मेदारी है इन बातों को आगे फैलाना। अगर हम इन बातों को आप तक ना पहुँचाएँ, कल अल्लाह के यहाँ हम मुजरिम हैं। कि आपको मिंबर रसूल दिया था, आपको मुसल्ला रसूल दिया था, हक बात ही नहीं आपने नहीं की। इब्राहीम अलैहिस्सलाम का रास्ता बिल्कुल सीधा रास्ता है। सारे माबूदाने बातिला को एक तरफ रख के एक अल्लाह की परस्तिश, ये इब्राहीम अलैहिस्सलाम का दीन है। इब्राहीम ने देखा सूरज बड़ा चमक रहा है, कहा ये रब होगा, गायब हो गया, कहा ये रब तो नहीं हो सकता। चांद को देखा बड़ा चमकने वाला, कहा ये रब होगा, वो भी गुरूब हो गया। सितारों को देखा, कहा ये बहुत ज़्यादा हैं, ये रब होंगे, गुरूब हो गए। क्या कहा, लोगों इस बात को सुन लो, वज्जहतु वजहिया लिल्लज़ी फ़तरस समावाति वल अर्ज़ हनीफ़ा, मैं उस ज़ात की तरफ अपना चेहरा करता हूँ कि जो बिल्कुल तन तन्हा अकेली ज़ात। तौहीद को अपने सीनों में जगह दीजिए। तौहीद के दीप जलाते हैं, तौहीद के दीप जलाते हैं बिदअत की अंधेरी महफल में। कब खौफ है हमको कातिल का, खुद शौक़ से आते हैं मक़तल में। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इन्नल हम्दलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तग़फिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बअद फ़इन्न अस्दक़ल हदीस किताबुल्लाह व अहसनल हदी हदी मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन ज़लालह व कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार। दुआ कीजिए जितने अहले इस्लाम बीमार हैं, अल्लाह ताला तमाम बीमारों को सेहत कामिला आजिला नसीब फरमाए। जितने अहले इस्लाम परेशान हैं, अल्लाह ताला तमाम परेशान मुसलमानों की परेशानियां दूर फरमाए। जितने मक़रूज़ हैं, अल्लाह ताला उनकी ख़ास मदद फरमाए।
रिश्तों के हवाले से जो परेशान हैं, अल्लाह ताला उन पर अपना रहम फरमाए। जितने अहले इस्लाम क़ैद व बंद की सोबतें बर्दाश्त कर रहे हैं, अल्लाह तबारक व तआला उनके लिए बहुत ज़्यादा आसानियाँ पैदा फरमाए। जितने हमारे मुसलमान दीगर ममालिक में परेशान हैं, अल्लाह ताला उनकी परेशानियाँ भी दूर फरमाए। जो साहब औलाद हैं, अल्लाह ताला उनकी औलाद को इब्राहीमी बनाए, और जो बे औलाद हैं, अल्लाह तबारक व तआला उन्हें नेक सालेह औलाद अता फ़रमाए। रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फ़िर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल ख़ासिरीन। रब्बना आतिना फ़िद दुनिया हसना व फ़िल आख़िरति हसनतन व क़िना अज़ाबन नार। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून व सलामुन अलल मुरसलीन वल